Now let's study the technique of DNA fingerprinting with a beautiful example so you understand what exactly is DNA fingerprinting. Let's see the technique. What is the technique of DNA fingerprinting? First, we will do isolation of DNA, then amplification by PCR, then digestion or fragmentation, then we will do heat denaturation, then we will do gel electrophoresis, then we will do southern blotting, that is elution, we will do hybridization, and then we will do autoradiography or photography. ये सब नाम देख लिया आपने. नाउ लेट्स सी व्हाट द टेक्निक इज. सबसे पहले यू विल आइसोलेट द डीएनए. सर, यू गो टू अ क्राइम सीन. समझो एक खून हुआ है और खूनी बेचारा मर चुका है, और समझो उसका गला दबा के खून किया गया था. तो वो जब कल्प्रिट उसका गला दबा रहा था, तो विक्टिम उसके हाथ पकड़ रहा था अपने आप को बचाने के लिए, और हाथ के ऊपर स्क्रैच किए उसने. तो कल्प्रिट के हाथ के ऊपर स्क्रैच हुए, बस उतना चाहिए था. तो विक्टिम ने मरने से पहले कल्प्रिट के हाथ को स्क्रैच किया, और उसके फिंगर नेल्स में कल्प्रिट के स्किन के सेल्स आ गए, और स्किन सेल्स में डीएनए मिलता है, तो हमको टिश्यू मिल गया. या वहीं पर कल्प्रिट का थोड़ा ब्लड जमीन पे गिर गया, क्योंकि उसका स्क्रैच हुआ, खून निकला और जमीन पे ब्लड मिला, तो आपको ब्लड मिल गया. या खून करते करते उसके कुछ बाल के फ्रैगमेंट जमीन पे गिर गए, तो यू गॉट अ हेयर रूट विच हैज इन इट सेल्स. तो यू हैव गॉट ब्लड जिसमें डब्ल्यूबीसी होता है, और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है. या यू गॉट हेयर सेल्स, हेयर रूट मिल गए. या यू गॉट स्किन सेल, टिश्यू मिल गया. या समझो एक रेप केस है, तो रेपिस्ट हैज रेप्ड द लेडी. द लेडी गोज फॉर अ मेडिकल चेकअप, और उसके वेजाइना में एक कॉटन स्वॉब डाल के उसमें से सीमेन को एनालाइज किया जाता है. सीमेन में स्पर्म होता है. स्पर्म हैज इन इट द न्यूक्लियस विद द डीएनए. सो आप ब्लड में से, हेयर रूट में से, टिश्यू में से, स्पर्म में से, किसमें से भी आप न्यूक्लियस में से डीएनए को आइसोलेट करो. And I hope you remember the isolation technique. You will take the cell into a tube and do its centrifugation. उसमें से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स अलग अलग हो जाएंगे. प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए पुट इन प्रोटीएज, आरएनए को तोड़ने के लिए पुट इन राइबोन्यूक्लिएज, और डीएनए को सेपरेट करने के लिए पुट chilled ethanol. Chilled ethanol will make DNA fine threads, suspensions of the DNA thread, and they are removed, which is called spooling of the DNA. And DNA को spool out किया जाता है. And that is isolation of DNA. Now, this is a valuable DNA. One DNA we have got, and it is very valuable. We will require time to find the culprit. So, ये valuable DNA जो मिला है, उसकी आप multiple copies बना लो. Amplify the DNA, we remember, by the technique called PCR. Polymerase chain reaction will help in amplification of the DNA. So DNA के multiple pieces मिल जाएंगे आपको, multiple numbers you will get.
So one DNA has been amplified to form multiple DNAs. Then this DNA is fragmented, cut with the help of, I hope you remember, restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme will cut the DNA, and it will get cut with the help of restriction endonuclease enzyme by cutting the phosphodiester bond. So समझो we have used the restriction enzyme EcoR1. It will cut DNA at its specific sequence. I hope you remember. Sequence is GAATTC and GAATTC and TTC, and between G and A, and between G and A, and then TGC. तो ये आपको एक फ्रैगमेंट मिला, ये आपको दूसरा फ्रैगमेंट मिलेगा, and it will cut it. So it will cut the DNA into multiple pieces like we did in biotechnology. And DNA के अलग अलग pieces मिल गए आपको. So DNA के अलग अलग pieces बन गए. These DNA pieces are now double stranded. You make this DNA undergo heat denaturation. So put the DNA at a high temperature of 91 to 93 degrees Celsius. Do we remember we had done it in PCR technique at 91 to 93 degrees Celsius? The hydrogen bonds between the nitrogen bases will break, and double stranded DNA will become single stranded. Double stranded DNA has become single stranded. Double stranded DNA has become single stranded, and that is called heat denaturation. Now you will get fragments of different lengths. Fragments of different length. तो ये वाला फ्रैगमेंट आपको मीडियम साइज मिला. मीडियम साइज. ये वाला फ्रैगमेंट इज अ लॉन्ग फ्रैगमेंट. इट इज अ लॉन्ग फ्रैगमेंट. एंड ये वाला फ्रैगमेंट आपको शॉर्ट साइज मिला. शॉर्ट साइज मिला. So this is medium, long, short, and this is called restriction fragment length polymorphism, RFLP. Restriction fragment length polymorphism, RFLP. अलग अलग लेंथ के डीएनए मिले आपको. नाउ चेक इट. ये कटिंग का हुआ. And why did we get DNA of different length? If you remember, these are your junks, and junks have in them VNTR, and these are variable number. Here we have 3 repeats, here we have 5 repeats, here we have 2 repeats. But there is a constant region before and constant region after. So before and after, we have constant regions. So now, if we use restriction enzyme, it will cut constant region. तो समझो यहां पर है GAATTC, तो यहां पर भी होगा GAATTC, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रीजन है. और यहां पर भी होगा GAATTC, बिकॉज ये भी कांस्टेंट रीजन है. और यहां पर है से GAATTC. It could be any sequence. Let us say it is GAATTC, GAATTC, GAATTC. तो यहां पर भी है GAATTC. It is constant region. तो constant region में restriction enzyme will cut the DNA. And समझो here it cuts between G and A.
then here also it will cut between G and A. Here also it will cut between G and A. And here it will cut, समझो same sequence is there. Could be any sequence. You use different restriction enzyme. But important क्या है? ये constant region है. ये constant region है. So it will cut GAA-TTC here. It will cut GAA-TTC here. And it will cut GAA-TTC here. And यहां G और A के बीच में कट हुआ और यहां G और A के बीच में कट हुआ. तो ये बन गया आपका रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट. सिमिलरली यहां G और A के बीच में कट हुआ और यहां G और A के बीच में कट हुआ. ये बन गया रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट. समझो यहां G और A के बीच में कट हुआ और यहां G और A के बीच में कट हुआ. ये बन गया restriction fragment. Now this restriction fragment constant region तो सेम है. constant region तो सेम है क्योंकि वो तो सब में सेम होता है. constant region सब में सेम होता है. And why is the fragment now, this fragment, why is it medium in length? And this fragment, why it is long? And this fragment, why is it short? Why is it short? So, if you remember, constant region तो same है तीनों में. Before the VNTR and after the VNTR. Constant regions are same. Constant region same है क्योंकि DNA identical होता है. Constant region same है. Constant region same है. But यहाँ पर we had 3 VNTR. यहाँ we had 5 VNTR. यहाँ we had 2 VNTR. So that is the reason this fragment is medium length. This fragment is long. And this fragment is short. So depending on how many VNTRs there are, depending on how many VNTR, 3 VNTR, medium size, 5 VNTRs, long size, 5 VNTR, long size, 2 VNTR, very short, short size. And this means fragments अलग-अलग length के मिलेंगे. This is called restriction fragment length polymorphism. Restriction fragment length polymorphism. RFLP, restriction fragment length polymorphism. तो यहां सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये अलग अलग लेंथ के हैं. इसके अंदर ये वाला मिड साइज है, ये वाला लॉन्ग है, ये वाला शॉर्ट है. इसमें 3 VNTR है तो मीडियम साइज हो गया. इसमें 5 VNTR है तो लार्ज साइज हो गया. इसमें 2 VNTR है तो स्मॉल साइज हो गया. क्योंकि कांस्टेंट रीजन तो सेम था. कांस्टेंट रीजन तो सेम था. ये रीजन सेम है, कटिंग के बाद 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 ये रीजन सेम है, ये रीजन सेम है, ये रीजन सेम है. तो कांस्टेंट रीजन सेम है. VNTR जितने ज्यादा होंगे या कम होंगे will decide the length of the restriction fragment. So because constant regions are same, the constant region is exactly same in all fragments. It is the VNTR which will decide कि कितना लंबा फ्रैगमेंट होगा. एंड ये होगा मिड साइज वाला 3 VNTR, ये लॉन्ग वाला 5 VNTR, ये 2 वाला शॉर्ट VNTR.
and that is what has happened. Now all these restriction fragments are तो mixed with each other. तो इसे हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? आई होप यू रिमेंबर, सेपरेट करने के लिए वी यूज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं तो हम लोग अगार अगार जेल लेते हैं और अगार अगार जेल में वेल्स होते हैं, उसके अंदर ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स डाल दिए जाते हैं and we place a cathode here which is negative charge and an anode here which is positive charge, and we create a electric field in between. दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे। डीएनए जो वेल्स में डाला था, डीएनए is negatively charged. DNA is negatively charged. So negative charge DNA will move towards positively charged anode. DNA negative charge will move towards positive charge anode. And DNA के fragments separate हो जाएंगे. And do we remember? ये सबसे क्रूशियल है यार, सबसे क्रूशियल। सबसे बड़े फ्रैगमेंट पीछे रह जाएंगे और जो सबसे छोटे फ्रैगमेंट्स है वो आगे जाएंगे। अगर हैवी है तो मूव नहीं हो सकता है तो पीछे रह जाएगा, अगर लाइट है तो वो एनोड की तरफ फटाफट से मूव होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द length of the fragments will move from heavy near the cathode, mid-size in the middle, and light or small size near the anode. And this is called sieving effect. इसे कहते हैं sieving effect. And sieving effect से डीएनए के अलग अलग पीसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां सबसे बड़े फ्रैगमेंट रह जाएंगे, सबसे बड़े फ्रैगमेंट यहां मिड साइज फ्रैगमेंट और यहां स्मॉल साइज फ्रैगमेंट। तो यहां बड़ा फ्रैगमेंट से 5 ENTR वाला था, 5 ENTR। यहां मिड साइज फ्रैगमेंट जो 3 VNTR वाला था, यहां स्मॉल फ्रैगमेंट जो 2 VNTR वाला था, जो अभी अभी हमने दिखाया। तो ये वाला फ्रैगमेंट 5 VNTR वाला सबसे बड़ा है, ये 3 वाला मीडियम साइज है और ये 2 वाला स्मॉल साइज है। तो यहां ये वाला कौन सा आ गया? 5 VNTR वाले। ये वाले कौन से आ गए? 3 VNTR वाले। ये वाले कौन से आ गए? 2 VNTR वाले। And they have separated according to their size depending on the VNTR that they have. Repeats कितने हैं? And जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगारोस जेल जो होती है ना, अगारोस जेल इज वेरी अनस्टेबल, वो कभी भी टूट सकता है। तो इतना पूरा प्रोसेस आपका वेस्ट जाएगा। तो अगारोस जेल के ऊपर अब आप एक नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर उसके ऊपर डाल दो। तो नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डालोगे तो ऑल द डीएनएस विल ट्रांसफर फ्रॉम अगारोस जेल टू द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। तो समझो ये है अगारोस जेल, उसके अंदर डीएनए का सीविंग हो चुका है, उसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डालो और नाइलॉन मेम्ब्रेन डालो।
और उसके ऊपर टिश्यू पेपर डालो. टिश्यू पेपर विल सक वाटर. तो नीचे अगारोस जेल में से पानी सक हो जाएगा एंड डीएनए के फ्रैगमेंट जेल से ऊपर जाएंगे और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर चिपक जाएंगे. सो नाउ नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर अगारोस जेली का डीएनए जाके चिपक गया. ये बड़े फ्रैगमेंट्स, ये मिड साइज फ्रैगमेंट, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट, इसे सदर्न ब्लॉटिंग या इल्यूशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग और इल्यूशन हैज बीन डन. नाउ nitrocellulose paper has on it fragments. These are the larger fragments. These are mid-size fragments. These are small fragments, depending on the size, depending on the number of VNTR. This has got maximum VNTR. इसके अंदर मैक्सिमम VNTR है, इसके अंदर कम VNTR है, इसमें उससे भी कम VNTR है, और ये सबसे छोटे फ्रैगमेंट है. नाउ ये फ्रैगमेंट सेपरेट तो हो गए हैं, बट वी कैन नॉट सी डीएनए सर. डीएनए इतना छोटा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, हाउ कैन यू सी इट? तो ये देखना है आपको कि वीएनटीआर कैसे स्प्रेड हुए हैं. तो उसको देखने के लिए वी हाइब्रिडाइज इट यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो आइसोटोपिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज कॉल्ड प्रोब डीएनए. तो वीएनटीआर को देखने के लिए वी hybridize it using complementary radioisotopic single stranded DNA called probe DNA. In other words, जो VNTR है ना, उसके ऊपर आप एक complementary sequence डाल दो. Complementary sequence, which is a single stranded DNA, and it has got complementary sequence and it is radioisotopic. तो वो ऑर्डिनरी डीएनए नहीं है, रेडियो आइसोटोपिक है. आइसोटोपिक डीएनए, उसमें से रेडिएशन एमिट होता है, फ्लोरेसेंस होता है. तो रेडियो आइसोटोपिक डीएनए इज फ्लोरेसेंट डीएनए विच विल एमिट रेडिएशन. और ऐसे रेडियो आइसोटोपिक single stranded DNA which is complementary to VNTR. तो VNTR को complementary होगा, ऐसा सीक्वेंस डालो. तो ये है ATGCA जो आपका VNTR है, उसके ऊपर आप डालो प्रोब डीएनए. इसे प्रोब डीएनए कहते हैं. और प्रोब डीएनए is complementary to VNTR. Probe DNA is complementary to VNTR. तो यहां क्या सीक्वेंस होगी प्रोब डीएनए की? ए को कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी को कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी जी को कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी को कॉम्प्लीमेंट्री सी को कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए को कॉम्प्लीमेंट्री टी. So if the sequence is ATGCA, the probe DNA is GACGT, and this is the way probe DNA will attach to VNTR. क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे. तो सर कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर, तो समझो यह सीक्वेंस मैंने गलत डाल दी है. यह है ATGCA, तो यहां पर होगा TACGA, TACGA, and T will pair with A, T will pair with A, G will pair with C,
C will pair with G, and यहाँ T, sorry, T, so T will pair with A. तो समझो द सीक्वेंस इज A, T, G, C, A. तो यहां पर सीक्वेंस आएगी, ये है VNTR, ये है VNTR, और आपके प्रोब डीएनए पे आएगा कॉम्प्लीमेंट्री. प्रोब डीएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड इट विल बी TACG. सो TACGA ये प्रोब होगा, और ये VNTR होगा, ये प्रोब डीएनए, ये VNTR, और उसके ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे. T और A के बीच में 2 बॉन्ड, A और T के बीच में 2 बॉन्ड, C और G के बीच में 3 बॉन्ड, G और C के बीच में 3 बॉन्ड, और A और यहाँ T, आई एम सॉरी, T, और यहाँ T और A के बीच में 2 बॉन्ड, T और A के बीच में 2 बॉन्ड. तो TACGA, तो ATGCA was the VNTR, TACGT is the probe. तो ऐसे probes अटैच हो जाएंगे, and probes will make this double stranded DNA. तो प्रोब इसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा. सो VNTR वो सिंगल स्टैंडर्ड, प्रोब उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, इट विल बिकम डबल स्टैंडर्ड, इट विल बिकम डबल स्टैंडर्ड. एंड व्हाट विल हैपन हियर, ये है VNTR, और ये हो जाएगा प्रोब डीएनए, विच विल मेक इट डबल स्टैंडर्ड. ये है VNTR, और ये हो जाएगा प्रोब डीएनए, ये हो जाएगा प्रोब डीएनए. which will be complementary to VNTR and attached to it. और इस तरह से VNTR और प्रोब डीएनए स्टिक हो जाएंगे. नाउ वी हैव टू विजुअलाइज दीज. तो उसको विजुअलाइज करने के लिए वी डू फोटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी, जिसके अंदर उस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर आप एक एक्सरे फिल्म डाल लो. Put an X-ray film over it, over the nitrocellulose or nylon membrane, and एक एक्सरे मशीन से उसके ऊपर रेडिएशंस, एक्सरेज, या यू मे यूज अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज, यू विल सी थिक बैंड्स. आपको थिक बैंड्स दिखाई देंगे. जहां जहां प्रोब डीएनए अटैच हुआ है वहां आपको थिक बैंड्स दिखाई देंगे. एंड थिक बैंड्स आर विजिबल. जहां थिक बैंड विजिबल है, इट मींस देयर इज प्रोब डीएनए अटैच्ड टू द VNTR. प्रोब डीएनए अटैच्ड टू द VNTR. तो इस तरह से आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस and the remaining technique is carried out. So, sir, we had done isolation of DNA, amplification, fragmentation, heat denaturation, gel electrophoresis, southern blotting, hybridization, and autoradiography. ये sequence याद रखना. This sequence is asked in the NEET exam many times. So, what is the sequence? You remember that. Now, let us use a beautiful example to understand how is DNA fingerprinting actually used. तो उसके लिए हम लोग एक सुपर्ब एग्जाम्पल यूज करते हैं. Now, suppose एक मर्डर हुआ है और जो विक्टिम बेचारा मरा पड़ा है, उसके पास पुलिस आती है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है, फोरेंसिक साइंटिस्ट आते हैं और उनको मर्डर जहां हुआ है
उसके पास हेयर के फॉलिकल्स मिलते हैं, और जो मर्डर किसने किया, कल्प्रिट के फिंगर नेल में सेल्स मिलते हैं, क्योंकि उसका गला दबा के मारा गया था और उसके हाथ कल्प्रिट के हाथ में थे और उसमें सेल्स मिलते हैं। तो व्हाट विल वी एनालाइज दिस विद? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो हेयर मिला या स्किन का सेल मिला उसको आइसोलेट करेंगे, फिर उसका पीसीआर करेंगे। तो ये कल्प्रिट का हेयर है या कल्प्रिट का स्किन सेल है, उसको आइसोलेट करके ये कल्प्रिट है, एंड कल्प्रिट का सेल आइसोलेट करेंगे। और कल्प्रिट का सेल आइसोलेट करने के बाद ये जो खूनी है उसका कल्प्रिट है, उसका सेल आइसोलेट करेंगे, पीसीआर करेंगे, फिर फ्रैगमेंटेशन करेंगे उसके डीएनए का, फिर उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर उसके ऊपर नाइलॉन मेम्ब्रेन डाल के नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे, उसके ऊपर प्रोब डालेंगे और प्रोब को एनालाइज करेंगे। तो नाउ चेक दिस ईयर, कल्प्रिट के डीएनए के अलग अलग क्रोमोसोम स्टडी करते हैं हम लोग। सो वी स्टडी से क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। वैसे तो सारे क्रोमोसोम स्टडी करते हैं, हम लोग दो तीन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। और क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर यू हैव चेक दिस ईयर, यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 VNTRs है। 11 VNTR in the chromosome number 11, which is maternal chromosome और पैटर्नल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। और उसके मैटरनल क्रोमोसोम में यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। Check this carefully. You have 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 VNTR मिले। फिर क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर यू गॉट 8 VNTRs। क्रोमोसोम नंबर 2 पैटर्नल, क्रोमोसोम नंबर 2 मैटरनल में मिले a total of 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 VNTR मिले। क्रोमोसोम नंबर 16 में यू गॉट पैटर्नल मैटरनल, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 1 2 3 4 5, 5 VNTR मिले, 5 VNTR यू गॉट। एंड ये था पैटर्नल, मैटरनल में मिला 1 2, 2 VNTR you got, 2 VNTR. Now this is there in the hair cell, हेयर सेल जो आपको क्राइम सीन में मिला है उसका आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। नाउ यू पुट इट ऑन अगारोज जेल, और अगारोज जेल से नेगेटिव टू पॉजिटिव आपने पास किया, तो सबसे पीछे कौन सा फ्रैगमेंट रह जाएगा? सबसे पीछे क्रोमोसोम नंबर 7 का पैटर्नल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 7 का पैटर्नल मैटरनल लिख लेते हैं हम लोग, पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल। तो पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 7 का पैटर्नल क्रोमोसोम, इट हैज गॉट 11 VNTRs, तो वो सबसे पीछे रह जाएगा क्योंकि वो सबसे हैवीएस्ट है, और उसके ऊपर VNTR, उसके ऊपर प्रोब डीएनए, तो ये सबसे बड़ा फ्रैगमेंट दिखाई देगा। उसके बाद कौन सा फ्रैगमेंट दिखाई देगा? क्रोमोसोम नंबर 7 का मैटरनल क्रोमोसोम विथ 9 VNTR, तो 9 VNTR उसके पीछे दिखाई देगा।
एंड बाद में क्रोमोसोम नंबर 2 का पैटर्नल क्रोमोसोम विथ 8 VNTR, वो 8 VNTR उससे भी नीचे आएगा। फिर मैटरनल का सेकंड क्रोमोसोम 7 VNTR, तो वो 7 VNTR के साथ आएगा। एंड पैटर्नल का 5, तो ये 5 वाला आ जाएगा ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16। और 2, तो ये 2 वाला आ जाएगा ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16। तो ये मिला आपको 11, 9, 8, 7, 5 और 2। सबसे नजदीक नियरेस्ट टू कैथोड कौन सा रहेगा? द वन विथ मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम VNTR। सबसे क्लोजेस्ट टू एनोड कौन सा रहेगा? द वन विथ 2 VNTR। 2 VNTR क्योंकि वो सबसे दूर तक ट्रैवल करता है, सबसे छोटा फ्रैगमेंट है, तो इट विल बी नियर द एनोड। तो 11, 9, 11, 9, 8, 7, 5, 2, ये आपको पैटर्न मिली। एंड हाउ इज द अरेंजमेंट डन? 11 वाला यहाँ रहेगा, यहाँ 10 वाला रहेगा, यहाँ 9 वाला रहेगा, यहाँ 8 वाला रहेगा, 7 वाला यहाँ रहेगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो दिस इज द वे द पैटर्न विल बी। जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे रह जाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे चला जाएगा। सो दिस इज द वे द DNA विल हैव सीविंग इफेक्ट। नाउ ये था क्राइम सीन पे कल्प्रिट का, खूनी का हेयर फॉलिकल। नाउ पुलिस 2 जन को सस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों उसी एरिया में थे। तो उनसे बातचीत की जाती है, उनको पूछा जाता है आप क्या कर रहे थे, आपने खून किया कि नहीं, सब कन्फेशंस किए जाते हैं। दोनों खूनी, दोनों जो सस्पेक्ट है बोल रहे हैं हमने खून नहीं किया। तो उनका DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, उनका बक्कल चेंबर खोलते हैं एंड बक्कल चेंबर में से सेल निकालते हैं, और बक्कल चेंबर के सेल निकाल के उनका आइसोलेशन एंड सेम प्रोसेस, यू डू PCR, यू डू फ्रैगमेंटेशन, हीट डिनेचुरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इल्यूशन, सदर्न ब्लॉटिंग, hybridization with probe and autoradiography। ये सीक्वेंस को याद रखना। एंड व्हाट डू वी फाइंड? इंडिविजुअल बी और इंडिविजुअल ए। इंडिविजुअल ए क्रोमोसोम नंबर 7 पे ही हैड 3 VNTR, पैटर्नल पैटर्नल 3 VNTR थे, मैटरनल 4 VNTR थे। एंड क्रोमोसोम नंबर 2 पे there were 8 VNTR paternal and 7 VNTR maternal। तो पैटर्नल कितने थे? पैटर्नल वर एंड मैटरनल वर एंड पैटर्नल मैटरनल। सिमिलरली ये पैटर्नल मैटरनल, पैटर्नल मैटरनल, पैटर्नल मैटरनल, विच इज राइटिंग इट। एंड ये थे क्रोमोसोम नंबर 7 पे 3 VNTR, 4 VNTR। क्रोमोसोम नंबर 2 पे you had 8 VNTR, 7 VNTR, and chromosome number 16 पे we have 5 VNTR, you have 10 VNTR। So look at the number 3, 4, 8, 7, 5, 10। और उसका जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा, व्हाट विल बी देयर? सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर 16 का 10 VNTR यहां आएगा, 11 के नीचे, 11 के नीचे। और उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 2 का 8 VNTR आएगा। ये रहा, सी द कलर, दिस इज लाइट कलर, ये लाइट कलर है, तो ये लाइट कलर है, ब्लूइश कलर है। फिर आएगा 8 VNTR, ऑरेंज, ऑरेंज है ये, ऑरेंज, 8 VNTR, ऑरेंज दिखाया हमने जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, 8 VNTR। फिर आएगा 7 VNTR, 7 VNTR। तो सबसे पहले आ गया
10 VNTR, बाद में आ गया 8 VNTR, बाद में आ गया 7 VNTR, बाद में आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर 7 का 3 सॉरी क्रोमोसोम नंबर 16 का 5 VNTR, क्रोमोसोम नंबर 16 का 5 VNTR, और बाद में आएगा 4 VNTR, 3 VNTR, 4 VNTR, 3 VNTR. तो check the sequence. It is 10, 8, 7, 5, 4, 3. इसमें कल्प्रिट का कौन सा था? कल्प्रिट का 11, 9, 8, 7, 5, 2. और सस्पेक्ट ए का कौन सा है? 10, 8, 7, 5, 4, 3. तो मैच कौन सा हो रहा है? एक 5 और 5 मैच हो रहा है, और 8 और 8 मैच हो रहा है. सिर्फ 2 मैच हो रहे हैं. ओनली 2 VNTRs आर मैचिंग. ओनली 2 VNTR आर मैचिंग. बाकी ये था 11, उसकी जगह ये है 10, और ये था 9, तो यहां 9 है ही नहीं. यहां 7 है, लेकिन यहां 7 है, यहां है, और यहां 5 है, 5 है. तो एक्चुअली 8 इज मैचिंग, and then 7 is matching, and 5 is matching. Only 3. But यहाँ 4 है, 3 है in case of suspect A. और culprit में 4, 3 नहीं है, सिर्फ 5 के बाद डायरेक्टली 2 है. 5 के बाद डायरेक्टली 2 है. तो what is the sequence of VNTR of chromosome number 16, 2 and 7 of culprit 11, 9, 8, 7, 5, 2, and chromosome number 16, 2 और 7 of suspect A कौन सा है? 10, 8, 7, 5, 4, 3. तो VNTR मैच बराबर से नहीं हो रहे हैं. यहां 11 है, यहां 10 है, यहां 4 और 3 है, यहां 2 है. तो ये मैच नहीं हो पा रहा है. अब सस्पेक्ट टू का यू गेट क्रोमोसोम नंबर 7, 11 VNTR, chromosome number 7 paternal maternal 9 VNTR, and then chromosome number 2 8 VNTR, chromosome number 2 7 VNTR, chromosome number 2 16 5 VNTR and 2 VNTR. और उसका जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, you got 11, you got 9, you got 8, you got 7, you got 5, you got 2. तो you got 11, 9, 8, 7, 5, 2. आपको कल्प्रिट का VNTR मिला 11 and 9, 8, 7, 5, 2, और सस्पेक्ट बी का मिला 11, 9, 8, 7, 5, 2. So are we seeing कि आपको जेल के ऊपर और नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर बैंड सेम दिखते हैं? ये सेम बैंड्स दिख रहे हैं. ये 11-11 वाला हो गया, ये 9-9 वाला हो गया, ये 8-8 वाला हो गया, ये 7-7 वाला हो गया, ये 5-5 वाला हो गया, ये 2-2 वाला हो गया. सो सस्पेक्ट बी और कल्प्रिट का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है. दैट मीन्स सस्पेक्ट बी इज एक्चुअली द कल्प्रिट. कल्प्रिट सस्पेक्ट बी है, वो खूनी है, उसने खून किया है. So this is the way we have found out by a beautiful technique
कि हम सबके अंदर VNTR कांस्टेंट है हमारे डीएनए के अंदर, और हम में जितने VNTR होते हैं उतने किसी और इंसान में VNTR नहीं होते हैं। तो हमारे हर एक क्रोमोसोम पे अलग अलग VNTR है। तो अगर सारे क्रोमोसोम के VNTR का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाए, then we can easily get caught if we have committed a crime। आपको सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड चाहिए कल्प्रिट का, या हेयर का एक फॉलिकल चाहिए, या एक स्किन का सेल चाहिए, या एक टिश्यू चाहिए, या एक स्पर्म चाहिए, और आप पकड़े जाओगे बिकॉज ऑफ योर VNTR। क्योंकि आपके VNTR इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर। बाकी 99.9% डीएनए सेम है, जीन सेम है, जंक सेम है। The only difference between you, me and everybody here is हमारे VNTR के segments एक दूसरे से कितने अलग हैं। That will determine our DNA fingerprint. चलो, I hope you have understood this beautiful technique, not explained in the NCERT or in the notes, सिर्फ theoretical दिया है। We have visualized the concept properly. इसे बराबर से पढ़ना। चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।